السلام علیکم پیارے دوستو۔ کہتے ہیں کہ کسی شہر میں ایک مدن لال نامی مہاجن رہتا تھا اور وہ ہمیشہ ہی ٹھگ بازی کا کام کیا کرتا تھا۔ اس کام کے ذریعے اس نے لاکھوں روپے کی جائیداد اکٹھی کر رکھی تھی۔ انہی دنوں میں مدن لال کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا اور اس خوشی میں مدن لال نے سینکڑوں روپے خرچ کر ڈالے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ لڑکا مر گیا تو عورت و خاوند دونوں کو بہت بھاری صدمہ ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد جب رنج و غم بھول گیا تو مدن لال جی ٹھگ بازی کرنے کے لیے باہر جانے کو تیار ہوئے۔ تب عورت نے کہا کہ اجی سنتے ہو، یہ کام بہت برا ہے، معلوم نہیں کسی کا کیسی محنتوں سے اکٹھا کیا ہوا دھن ہوتا ہے، اور جب تم اس کو دھوکہ دے کر وہ دھن لے آتے ہو تو ان لوگوں کے دلوں کو بہت دکھ ہوتا ہوگا اور وہ ٹھنڈی سانس بھر کر تمہیں گالیاں ضرور دیتے ہوں گے۔ دانا لوگ کہتے ہیں کہ پرائے دھن کو مٹی کے برابر، پرائی عورت کو ماتا کے برابر جو سمجھتا ہے وہ سادھو ہے۔ کام، کرودھ، لوبھ، موہ سے ہمیشہ بچی رہنا چاہیے اور ہر ایک جاندار پر رحم کرنا بہت اچھا گن ہے، مگر آپ تو اس کام کو کرنے میں کسی بات کا بھی خیال نہیں کرتے۔ اس دنیا میں جس کی عزت نہیں ہے اسے دوسرے لوک میں بھی کون بھلا کہے گا؟ جو پاپ پن کوئی شخص کرتا ہے وہی اس کا بھاگ ہوتا ہے۔ دیکھو، اپنے بھاگ میں پتر یعنی رتن ملنا لکھا تھا سو ملا، لیکن آپ کے زمانہ حال کے برے کرموں کے سبب وہ مر گیا۔ دیکھو، میں عورت ہوں، آپ کو زیادہ نصیحت آمیز الفاظ نہیں کہہ سکتی۔ مدن لال بولا، اے پیاری، جو کچھ تو نے کہا ہے میں نے سن لیا ہے، تیرے کہنے سے اب کبھی ٹھگ بازی کرنے نہ جاؤں گا، مگر تو یہ تو بتا کہ گھر بیٹھے بیٹھے کیا کروں گا، دن کیسے کٹیں گے؟ عورت بولی، اگرچہ ابھی آپ کے پاس اتنا دھن دولت موجود ہے کہ زندگی بھر چین سے دن گزر سکتے ہیں، اور شہر میں کوئی اور دکان نکال لیجئے جس سے شہر والوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ اب روزگار کرنے لگا ہے اور اب اس نے ٹھگ بازی بند کر دی ہے۔ مدن لال نے بہت اچھا کہہ کر بازار میں جا کر ایک دکان کرائے پر لے لی اور ہر قسم کا مال یعنی اناج، کرانہ، کپڑا، چاندی، سونا وغیرہ رکھ کر تن من سے دکان کرنے لگا۔ دکان میں اس کو بہت فائدہ ہونے لگا۔ دل میں سوچا کہ روپے کو روپیہ پیدا کر لیتا ہے۔ اس کو اس کے ساتھی ٹھگ بازی کرنے کو بہت کہتے تھے مگر یہ نہ مانتا تھا۔ کئی سال اسی طرح دکان کرتے کرتے گزر گئے اور اب اس کے پاس دولت بھی بہت ہو گئی۔ ایک دن رات کو یہ رفع حاجت کے لیے باہر گیا تو وہاں 4 ٹھگ چلے جاتے تھے۔ وہ ٹھگ آہستہ آہستہ آپس میں یوں کہنے لگے کہ جب مدن لال رفع حاجت کر چکے تو اسی وقت اس کا لوٹا لے کر بھاگ جانا۔ مدن لال نے ٹھگوں کی بات چیت سن لی، کیونکہ یہ بھی تو پہلے ٹھگ بازی میں اچھا ماہر تھا۔ رفع حاجت کرنے کے بعد پانی لیا اور کہنے لگا، اوہ، میں تو ران کے درد سے مرا جاتا ہوں، اب ایک ہنڈا یعنی کوئی بڑا برتن باہر رکھ لوں گا جس سے آسان ہو جائے گا، پانی مانگنا نہیں پڑے گا۔ چاروں نے مدن لال کی بات سن کر آپس میں صلاح کی کہ بھائی لوٹا نہ اٹھاؤ، ہنڈا رکھنے دو، جب یہ رفع حاجت کو آئے گا تب تک ہم ہنڈا لے کر بھاگ جائیں گے۔ مدن لال رفع حاجت کر کے گھر پہنچا اور ہاتھ پاؤں صاف کر کے آرام کرنے لگا۔ ادھر یہ چاروں ٹھگ ہنڈا کے انتظار میں بیٹھے رہے تو صبح ہونے کا وقت آ گیا۔ آپس میں کہنے لگے، بھائی اب گھر کو چلو، کل خواہ کچھ بھی ہو مدن لال کی چوری کرنا ضروری ہے۔ ادھر صبح ہونے پر مدن لال باہر جا کر بچھو کی تلاش کرنے چلا گیا۔ جو کام کیا جاتا ہے اس کا پھل ضرور ملتا ہے۔ تلاش کرتے کرتے دوپہر کے بعد مدن لال کو ایک بچھو مل گیا۔ اس نے فوراً چمٹے سے پکڑ کر کاغذ میں ایک پڑیا باندھ لی اور اپنی پگڑی کے ایک سرے میں باندھ کر پگڑی گھر کی دالان میں کسی کھوٹی پر لٹکا دی۔ سورج غروب ہونے پر مدن لال دکان بند کر کے گھر آیا اور کھانا وغیرہ کھا کر آرام کرنے لگا۔ 11 بجے رات کے آنکھ کھل گئی تو کیا آہٹ سنی کہ گھر کے اندر چوک میں دیوار پر سے کوئی کود کر آیا ہے۔ تب یقین ہو گیا کہ وہی ٹھگ آ گئے۔ مدن لال اونچی آواز سے چلایا، ارے تو سوتی ہے یا جاگتی ہے؟ عورت بولی، میں تو جاگتی ہوں، کہیے کیا کام ہے؟ مدن لال بولا، ارے میں تمہارے ماتھے کی دونی بنوا کر لایا تھا اور اسے میں نے پگڑی کے سرے میں باندھ دیا تھا اور وہ پگڑی باہر دالان میں کھوٹی پر رکھ دی تھی، تم نے نکال رکھی تھی یا نہیں؟ عورت نے جواب دیا، مجھے تو یاد نہ رہی۔ مدن لال بولا، بس بس حرامزادی، چپ رہ، اب شور مت کر، اگر کوئی سن لے گا تو لے جائے گا۔ مدن لال اور اس کی عورت کی بات چیت کو سنتے ہی چاروں ٹھگوں نے جلدی سے پگڑی اپنے قبضے میں کر لی اور گانٹھ ٹٹول ٹٹول کر بہت خوش ہوئے۔
तब दीवार फांद कर दूसरी तरफ बाहर पहुंचे और गांठ खोलकर चारों देखने के लालच से आगे आगे हाथ करने लगे। पगड़ी खुलते ही बिच्छू ने एक एक दो दो डंक हर एक को लगा दिए। उनकी चीखें निकल गईं और वहां से भागे और घर को आए। बिच्छू के जहर से चिल्लाते थे और रोते थे, सर पीटते थे, कभी बेहोश हो जाते थे, दवाई लगाते थे, अपने किए पर पछताते थे। कुछ आराम ना हुआ। ज्यों त्यों करके रात काटी और दर्द भी थोड़ा कम हो गया। खा पी कर सो गए। 4 बजे दिन के चारों यार इकट्ठे हुए और उस दुख को भूलकर फिर वही काम करने की सलाह करने लगे। मदन लाल पर बहुत गुस्सा था। कहने लगे, आज फिर दुष्ट के घर चलो, जिस तरह भी होगा चोरी जरूर करेंगे। चारों ने पक्की सलाह करके 11 बजे रात के करीब मदन लाल के घर की 4 दीवारी फांद कर अंदर चले गए और अंदर चौक में पहुंच गए। मदन लाल आहट सुनते ही औरत से बोला, क्यों री, मजदूरों से निबूले घर में रखवा लिए थे? औरत ने जवाब दिया, शाम हो जाने के सबब मैंने अंदर नहीं रखवाए थे। मदन बोला, अरे हरामजादी, तेरी अक्ल क्या मारी गई है? आज बाजार में 1 रुपए का 1.5 सेर निबूला नहीं मिला, इसलिए हर एक चीज को बड़े इंतजाम से रखना चाहिए। चारों ठगों ने इतना सुनते ही इधर उधर देखा तो एक दालान में निबूलों का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था। चारों ने अपने अपने कपड़ों में अच्छी भारी गठरियां बांध दीवार गुजर अपने घरों को आ गए। रात भर आराम करके सुबह को जागे और दोपहर को भोजन करके अपनी अपनी गठरियां, तराजू और बट्टे लेकर बाजार में निबूले फरोख्त करने को बैठ गए। मदन लाल चारों ठगों को निबूले रखे देखकर बोला, कहो भाई, निबूले कैसे दिए? ठग बोले, 1 रुपए के 1.5 सेर। मदन बोला, अरे भाई, ये तो बहुत महंगे हैं, जो वाजिब दाम हो वो बताओ। ठग बोले, हमने तो इसी कीमत पर फरोख्त किए हैं, तुम पूछ लो, हम तो 1.5 सेर से ज्यादा ना देंगे। मदन लाल बोला, 1.5 सेर निबूला रात को ही बिकता है, अब दिन का भाव बताओ कि कितने पसेरी 1 रुपए में दोगे। ठग बोले, हम तुमको देंगे ही नहीं। मदन लाल तो अपने घर को चला आया और ठगों ने किसी दूसरे आदमी को निबूला 7 पसेरी 1 रुपए की कीमत पर दे दिए और कुल निबूलों का 1.5 रुपया मिला। बराबर बराबर पैसे बांटकर घर को आ गए। मदन लाल पर सख्त नाराज थे। चारों फिर सलाह करके 11 बजे रात को मदन लाल के घर पहुंचे और दीवार गुजरकर अंदर चले गए। मदन लाल बहुत होशियार था। उनके आते ही औरत से कहने लगा, तुमको नींद भी ज्यादा आती है, रात का वक्त है, ठग लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, आपने सब चीजें संभाल कर तो रख दी है ना? औरत ने जवाब दिया, जिस दिन से निबूले चोरी हो गए हैं तब से हर एक चीज बहुत होशियारी से रखती हूँ। जेवर वगैरह व नकद रुपया 4 पोटलियों में बांधकर उस दिन से रात होने पर हर रोज नीम के दरख्त की टहनियों में लटका आती हूँ। मदन लाल बोला, हमारे घर में तो जेवर के बगैर और कुछ दौलत है ही नहीं, उसकी रखवाली अच्छी तरह से करनी वाजिब है, मगर जब मेरे कहे बगैर ही नीम की टहनियों पर लटका आई है तो फिर कोई फिक्र नहीं, बेफिक्र रहो। ठगों ने इतनी बात सुनते ही नीम के दरख्त की तरफ देखा तो बेशक उसकी टहनियों पर शहद की मक्खियों के 4 छत्ते लगे हुए थे। उन्होंने जेवर जानकर मकान से बाहर आए, क्योंकि दरख्त मकान के बाहर की तरफ झुका हुआ था, इसलिए एक एक छत्ते की तरफ एक एक बड़ी जल्दी से चढ़ने लगे। नजदीक पहुंचते ही हाथ मारा तो हजारों मक्खियां उड़ने लगी, ठगों के बदन पर लिपट गईं और काटने लगी। बड़ी जल्दी से उतरने पर धड़ाम धड़ाम से नीचे गिरने लगे और गिरते पड़ते घर को पहुंचे। तमाम बदन सूज गया और जहर के मारे सारे बेहोश हो गए, खाना पीना भूल गए। औरतें दवाई करती थी और उनके बुरे कामों के बुरे नतीजे देखकर नसीहत करती थी। मोहल्ले वाले खबर लेने को आए और दुख का सबब पूछने लगे। चारों ठग दिल में मदन लाल को कोसते थे और अपने ख्यालों से बाज नहीं आते थे। कुछ दिनों में तंदुरुस्त होने पर फिर चारों ठगों ने इकट्ठे होकर सलाह की, भाइयों, हम चारों इस काम में बहुत होशियार थे, मगर मदन लाल ने हमें नीचे दिखा दिया, पूरे तौर पर हरा दिया, अच्छी तरह हैरान किया, पूरा बेशरम बना दिया, बिच्छू से कटाया, निबूलों का बोझ भी 1.5 रुपया में उठवा दिया, अब शहद की मक्खियों से भी कटवा दिया। इतना होने पर हमें कुछ भी हाथ न लगा, जो 2-4 दिन बैठकर आराम से खाते। अब आज रात को हुआ कुछ ही बतला दे, कैसा ही बोझ बता दे, मगर कमंद फेंककर या नकब लगाकर मकान के अंदर की चोरी करें। अगर जागकर कुछ कहे तो उसको जान से मार डालें और सब दौलत उठाकर ले जाएं। अब चारों सलाह करके उसी वक्त रवाना हुए और दीवार गुजरकर चौक में पहुंचे।
वहां जाकर कमंद लगाया और चारों मदन लाल के घर के अंदर पहुंच गए। जो ही वो ठग अंदर दाखिल हुए तो मदन लाल झुककर कमंद के पास बैठ गया और चिराग रोशन करके औरत से कहने लगा, मैं आज दिन को अपने बट्टों की जांच करना भूल गया हूँ, इसलिए तुम सारे बट्टे और तराजू उठाकर मुझे ला दो। उस बट्टों के ढेर में कोई पत्थर 5 सेर का, कोई 8 सेर का, कोई 10 सेर का, कोई 4 सेर का और कोई 3-3 सेर 2-2 सेर के रखे थे। सबको अपने पास रखवा लिया। मदन लाल के जागते और चिराग रोशन करते ही चारों ठग मारे दहशत के चारों कोनों में सुकड़ कर बैठ गए। इधर मदन लाल ने अपने बट्टों को तोलना शुरू किया तो तराजू के एक पल्ले पर 1 सेर का पत्थर रखा और दूसरे पल्ले पर 7 सेर का पत्थर रखा और तराजू को उठाया तो 1 सेर के पत्थर वाला पल्ला जमीन से ऊंचा उठ गया और 7 सेर वाला ना उठा। तो अपनी औरत से नाराज होकर कहा, इस पत्थर को दूर फेंक देना चाहिए। ऐसा कहकर मदन लाल ने उस पत्थर को एक कोने में इतनी ताकत से मारा कि ठग के सर पर लगते ही मर गया। इसी तरह बाकी 3 ठगों को भी इसी तरीके से मौत के घाट उतार दिया। जब चारों मर गए तो औरत बोली, आपने ये क्या मुश्किल और अंदेशा वाला काम किया है। अपने मकान में ही इनको मारकर मुर्दा कर दिया। ये मुर्दे अब कहाँ डालोगे और क्या करोगे। मदन लाल बोला, देख, मैंने पहले ही तुझसे कह दिया था कि जैसे 70 मन वैसे 72 मन, यानी मैंने हजारों आदमी मौत के घाट उतारे हैं। मगर जब ये चारों ठग मेरा बहुत पीछा किए हुए थे और जबरदस्ती मेरी दौलत लेना चाहते थे, इस पर भी मैंने इन लोगों को लोटे के बोझ से, दूसरे बिच्छू के डंक लगवाने से, तीसरे निबूला देने से, चौथे शहद की मक्खियों से कटवाने पर तंग किया। लेकिन ये लोग बाज ना आकर मेरे मकान में कमंद लगाकर आ ही गए। तो इतने तंग करने पर भी बाज ना आए तो मैं इनको क्यों ना मार डालता। अगर मैंने इनको बगैर तसव्वुर के मारा होगा तो मुझे इसका पाप का फल जल्दी मिलेगा, और अगर मैंने इंसाफ किया है तो वो दयालु परमात्मा मुझे बेकसूर जानकर इन मुर्दों को दफा करने की तजवीज जल्दी ही बतला देगा। किसी किस्म का फिक्र करने से क्या हासिल है, क्योंकि मैंने अपनी अक्ल के मुताबिक बुरा काम नहीं किया। ये दोनों इस किस्म की बातें कर रहे थे कि सुबह के 4 बजे के करीब एक भिखारी लंबी आवाज के साथ भीख मांगता उनके दरवाजे के पास से चल निकला। तो मदन लाल ने दरवाजा खोलकर फकीर को बुलाया और पूछा कि बताओ तो, जो तुम इस वक्त से लेकर शाम तक बराबर आवाज देते फिरते हो, इसमें तुम्हें क्या फायदा होता है। फकीर बोला, सरकार, किसी रोज 8 आना, किसी रोज 6 आना और किसी रोज 12 आने और किसी दिन 1 रुपया तक के पैसे मिल जाते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं मिलते। मदन लाल बोला, हमारा एक छोटा सा काम करो जिसमें सिर्फ 1 घंटा लगेगा और उसकी मजदूरी मैं 2 रुपए दे दूंगा। मेरे घर में एक आदमी मर गया है, मैं अकेला आदमी हूँ, इसलिए ले जाने से लाचार हूँ। तुम इसे शहर से बाहर फेंक आओ और 2 रुपए ले लो। फकीर बहुत अच्छा कहकर एक ठग मुर्दा को अपने कम्बल में बांधकर शहर से बाहर फेंक आया और आकर 2 रुपए मांगे। मदन लाल ने फकीर के चले जाने के बाद उसी जगह दूसरा मुर्दा रख दिया था। फिर फकीर से बोला, मैंने आपके साथ जो वादा किया हुआ है वो कभी बदल नहीं सकता। रुपए ये रखे हैं, सो ले लेना। मगर जिस मुर्दे को तुम फेंकने गए थे वो तो भाग आया है, देखो वो पड़ा है। फकीर बहुत हैरान हुआ और उसे भी फेंकने चला गया और वापस आकर अपनी मजदूरी मांगी। मदन लाल ने पहली बार की तरह जवाब दिया और उसी तरीके से बाकी के 2 मुर्दों को भी शहर से बाहर फेंकवा कर फकीर को 2 रुपए दे दिए और कई दिनों के लिए खाने वगैरह का सामान देकर रुखसत कर दिया। और फिर आप अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए गंगा स्नान करने चला गया। ब्राह्मणों को दान वगैरह देकर भोजन कराए, इन कामों से फारिग होकर आराम से रहने लगा। फिर ये दोनों, मदन लाल और उसकी औरत, बुरे कामों को छोड़कर धर्म के पाबंद होकर दिन गुजारने लगे। कुछ दिनों के बाद उनके यहाँ एक लड़का भी पैदा हो गया, जिससे उनकी औलाद की कमी भी पूरी हो गई। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मजीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया।